We will see this particular case when electric field is due to charge spread throughout the volume of a sphere. ये एक स्फीयर है जैसे कि सॉलिड स्फीयर, उस सॉलिड स्फीयर के अंदर के पार्टिकल्स में भी चार्ज पार्टिकल्स हैं. सो द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम. उसे हम इस तरह से यहाँ एग्जिबिट कर लेंगे लाइक दिस. So it is distributed all over it. Yes. So all over the sphere, inside, outside, everywhere, there are charges. This we have discussed yesterday. इस तरह के चार्ज का मेजरमेंट हम कैसा करते हैं? If the full charge of this body is Q, then the charge per unit volume, इसको हम मान लेते हैं रो. So rho is what? Rho is charge per unit volume or volumetric density of charge, volumetric distribution of charge, that is rho. यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम पर क्यूबिक मीटर. ओके. So this is that sphere which is carrying the charge. Now we have to find out electric field due to this. First, if the point is outside, P is outside and this distance is R. Now, if we make a Gaussian surface here, all the charge Q will be inside the Gaussian surface, and this will be the same derivation as we have done for shell. इसका डेरिवेशन अगर हम यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज क्यू आ गया. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो हम शेल के लिए बना चुके हैं. केस वन, the same result is there. All the derivation is same, so I don't have to repeat it. Now we go for case 2, and that is P is on the surface. यहां पर हम क्या देखते हैं? सरफेस, ये दिस इज सरफेस. अगर हम यहाँ से इधर आते हैं, R की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है. अगर R की वैल्यू डिक्रीज होती है तो E की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी. एंड व्हेन इट रीचेस दिस पोजीशन R, देन इट विल रीच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आंसर दिस विल बी E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the value, and this value is going to be the maximum value. We will find, आगे जाके भी हम देख लेंगे, that this happens to be maximum value. And this result is same as result for shell. तो shell के लिए और spherical distribution के लिए आउटसाइड पॉइंट और सरफेस का पॉइंट
दोनों की डेरिवेशन सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम के अनुसार दोनों लोकेशन में चार्ज उस स्फीयर के अंदर ही है, भले सरफेस पर है भले अंदर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके अंदर, इसलिए बाहर के रिजल्ट नहीं बदलते। दीज विल बी सेम रिजल्ट। Now, the important thing is when the point P is inside. Suppose point P is here, and this is something which we are supposed to discuss and you are supposed to understand. जब यहाँ पर point P है तो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं गॉसियन सरफेस? आंसर यहाँ से सेम सेंटर लेके इस R को रेडियस मान के we draw a sphere. ये जो स्फीयर हमने बनाया, दिस इज कंसेंट्रिक स्फीयर, दिस इज गॉसियन सरफेस फॉर केस 3। गॉसियन सरफेस। ओके, वी स्टार्ट। हाउ मच इज क्लोज्ड इंटीग्रल EDS? Closed integral EDS cos theta. Here electric field will be perpendicular to the surface, so this is the direction of electric field, and for this is the area and this is area vector. What is the angle between the two? Answer 0. At every point it will be 0, so this cos 0 at every point is equal to 1. E at every point will be same because of symmetry. R सब जगह एक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, that is a constant, we can take it out and this will be E closed integral ds. This is equal to closed integral ds, this ds पूरे का सरफेस एरिया कितना? नो, इट्स नॉट, यस इट इज 4 pi r square. So this is E into 4 pi r square. This radius is r and this is a sphere. और स्फीयर का वॉल्यूम नहीं चाहिए, वॉल्यूम होने से 4/3 pi r क्यूब होता, हमको सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया इज 4 pi r square. क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम में हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? ds, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन है, इसलिए 4 pi r square. This is done. Now we go to the next step, and our next step is charge within Gaussian surface. This is a tricky thing. यहां पर आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, दैट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस Q कितना। अब इसको हमने टोटल चार्ज कितना दिया है Q, ये Q इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। हमको कौन सा चार्ज चाहिए? तो हमको वो चार्ज चाहिए जो इसकी सरफेस के अंदर है, यानी कि यहां पर है, ये एट ऑल दिस प्लेस। ये वाला चार्ज नहीं चाहिए, ये वाला चार्ज नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर का चार्ज चाहिए, दैट इज गॉस थ्योरम विद इन दिस सरफेस। इसको कैसे काउंट करेंगे? तो यहां पर और यहां पर क्या चीज इक्वल है? आंसर है चार्ज डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी 1 क्यूबिक मीटर में जितना चार्ज यहां है उतना ही यहां पर है। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना होगा? हमको चार्ज का कैलकुलेशन मालूम है, Q इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। एक वॉल्यूम पर 1 क्यूबिक मीटर में रो है तो टोटल वॉल्यूम में रो इंटू वॉल्यूम आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर? 4/3। देखिए अब वॉल्यूम डील कर रहे हैं, इसलिए 4/3 का फॉर्मूला 4/3 pi r cube multiplied by rho. This is the charge within the Gaussian surface. ये आ गया। Now let's apply
गॉस थ्योरम, क्या है गॉस थ्योरम? क्लोज्ड इंटीग्रल EDS is equal to Q upon epsilon naught. And now let us put values. When we put values, then closed integral EDS has value E into 4 pi r square. E into 4 pi r square equal to Q. How much is the Q? 4 upon 3 pi r cube into rho. This is the charge inside divided by epsilon naught. Epsilon naught. We have put the values. Simplify करने में r square r cube क्या बचा? Only r. Pi cancelled. 4 cancelled. 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यहाँ क्या बचा? E. So this leads to, on simplification, E is equal to rho into R upon epsilon naught. This rho upon epsilon naught into R. This is electric field at a distance R. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको क्या मिली? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. वेरी सिंपल. अब इस इक्वेशन की स्पेशलिटी देखिए. इस इक्वेशन की स्पेशलिटी क्या है? रो इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज similar at all the places. Epsilon naught is a constant. तो वेरिएबल कौन है? R और E. So there is a relation between E and R. और इस रिलेशन को अब हम आगे स्टडी करते हैं. R कहाँ से शुरू होता है? सेंटर से. यहाँ पर R की वैल्यू क्या है? 0. R is equal to 1, 2, 3, 4, 5. R is equal to R. और इंक्रीज करते जाइए, यहां तक पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा? R is equal to R. ठीक है. सो ऑल दीज केसेस, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये सब एक कैटेगरी में आएंगे. व्हाट इज दैट कैटेगरी? विद इन द स्फीयर. दैट इज द कैटेगरी. So here we have to write it, rho upon 3 epsilon naught. 3 and this 3 will cancel this 3. So this is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. और ये फॉर्मूला देखिए, ये हम आउटसाइड के लिए निकाल चुके हैं. तो सरफेस पर अगर हम अंदर से सरफेस पर पहुंचते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो भी यही रिजल्ट आता है. और बाहर से अंदर आते हैं तो भी सरफेस पर यही रिजल्ट आएगा. सरफेस के बाहर का रिजल्ट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस के अंदर का प्रोपोर्शनेट टू आर हो जाएगा. राइट? क्या आप इसको क्यू के टर्म्स में लिखना चाहेंगे? लिख लीजिए, ऐसा आ जाएगा. डज नॉट मैटर. ओके. सो in that case वो क्या हो? if we want this E inside in terms of Q, this is R, this is a point at distance R. Find the electric field at this place in terms of the total charge given to this, which is Q. Okay, तो हमने तो ये फॉर्मूला बनाया है. यहाँ पर अगर हम इसकी रो की वैल्यू रख देंगे तो रो की वैल्यू कितनी होती है? रो की वैल्यू होती है Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यू. ये कैपिटल R लेना है क्योंकि Q पूरे बड़े स्फीयर को दिया है हमने. दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 3 epsilon naught. 3 epsilon naught and this is to be multiplied with R. So this 3 is cancelled. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और
यहाँ क्या बचा r, और नीचे क्या आया r क्यूब. This is the Q. This is expression for electric field inside at a distance r in terms of Q. पर ये वाला थोड़ा complicated है. This appears to be much easier. इसलिए हम लोग इसको याद करेंगे. ओके, अब यहाँ पर फिर से हम एक बार ग्राफ बनाते हैं. अगेन दिस इज r. यहाँ से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पर लेते हैं. दिस इज कैपिटल R. तो ये वाला पोर्शन दिस इज इनसाइड, दिस पोर्शन इज आउटसाइड एंड दिस पॉइंट इज सरफेस. अंदर में क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? आंसर है नो. देयर इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन द टू. इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग 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 मैक्सिमम वैल्यू. सरफेस पे जाके उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. तो यहां का ग्राफ हमें ऐसे मिला. यस, लीनियर रिलेशन है. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू R. उसके बाद जब बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/r², और ये ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा. दिस इज E proportionate to 1/r². Here E proportionate to R, and here this is the maximum value, peak value of the electric field. So this is the graph of ER graph for charge distributed in sphere. That is volumetric charge distribution. Volumetric charge distribution. This is the graph. Please remember it. उस ग्राफ में क्या था? This. In this graph, it is directly this way, this way. Inside at every point, we have electric field. So this is electric field in a sphere.